رب میری طرف دیکھے گا، جو میں اس انسان کے مقدر میں فیصلہ کروں گا رب کائنات وہی صادر فرمائے۔ میرے بھائیو، آؤ ایسا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی دنیا میں آئے، کیا آپ نے سیرت نہیں پڑھی؟ دنیا میں آئے تو الفاظ زبان پہ کیا تھے؟ رب حبل امتی، میرے رب میری امت کو بخش دے۔ غار ثور میں رو رو کے گزار دیا وقت، غار حرا میں، طائف کے بازاروں میں 2 میل تک پتھر کھائے ہمارے نبی نے۔ کس لیے کھائے؟ ہمارے نبی نے اتنی قربانیاں دی، تو ہم کیوں نبی کو راضی نہیں کرتے؟ جو احسان فراموش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور جو محسنین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں رب کائنات ان سے محبت کرتا ہے۔ نبی کی ذات سے بڑا ہمارا کوئی محسن ہو نہیں سکتا، اور نبی کے بعد سب سے بڑے محسن کا نام امام حسین رضی اللہ عنہ، افضل ہے کل جہاں سے ترانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین۔ حسین نے اپنا آپ لوٹا کے آج ہمیں جو دین میسر ہے، یہ سہولیات میسر ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ رب کائنات ہمیں اپنے نیک بندوں کی محبت بھی عطا فرمائے، اور ان کے واسطہ اور وسیلہ سے اپنے نبی کی بارگاہ میں رسائی بھی عطا فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو بھی ہو جائے، انسان جتنے بھی گناہ کرے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور میری رحمت کیا ہے؟ میرے نبی کا در ہے، میرے نبی کے در پہ آ جاؤ، اس کے وسیلے سے میری بارگاہ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ میرے باتی ہیں، اور آپ ایک حدیث مبارکہ اللہ کی رحمت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، بخاری کی لمبی حدیث، حضور نے فرمایا کہ جب میرے آخری امتی کو جنت سے دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، وہ سارا واقعہ بخاری شریف میں بڑی طویل حدیث آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیسے ہوگا۔ بڑی ایمان افروز حدیث ہے، پڑھا کریں، اور اس حدیث کو پڑھنے اور سننے کے بعد انسان کے وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ میرے اعمال مجھے جنت میں لے جائیں گے یا نجات مل جائے گی۔ اللہ کی رحمت اور نبی کی شفاعت، صرف یہی ایک ذہن میں بات ہے، اور ساتھ نبی کی سیرت میں انسان سے جتنا عمل ہو سکے۔ تو جب میں یہ حدیث میں پڑھتا ہوں تو حضور آپ نے اس حدیث مبارکہ میں اس شخص کا نام بھی لیا کہ وہ فلاں بن فلاں ہوگا، آپ نے صرف یہ کہا کہ میری امت میں سے ہوگا اور سب سے آخر میں سے جنت میں ڈالا جائے گا۔ میں سوچتا ہوں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے اعمال جنت میں لے جائیں، آج ہم وہ آخری انسان ہی بن جائیں جو اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے وسیلہ سے اور ذریعہ سے آپ نے جنت میں جانا ہے، تو اپنا تصور سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث مبارکہ کو سنیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میرا آخری امتی جسے دوزخ سے نکالا جائے گا وہ اللہ سے کلام کرے گا، کہے گا رب کائنات میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہکار ہوں، بڑے گناہ میں نے کیے ہیں، میرا حق نہیں بنتا کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن تو رحمت والا ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، میں تو اسے اور کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا مانگتا ہوں کہ دوزخ میں ہی رہوں گا، لیکن میرا چہرہ دوزخ کی آگ سے پھیر دیا جائے، صرف چہرہ پھیر دیا جائے۔ رب نے فرمایا کیوں پھیرا جائے؟ کہتا ہے آگ میرے چہرے کو جھلساتی ہے، میری جلد جل رہی ہے، چاہتا ہوں صرف چہرہ پھیر دیا جائے، میرا حق نہیں بنتا، لیکن تیری رحمت کا تجھے واسطہ، تیری ربوبیت کا تجھے واسطہ، تیرے نبی کی رحمت کا تجھے واسطہ، میرا چہرہ پھیر دیا جائے۔ رب فرمائے گا ایک وعدہ کرو، عرض کرے گا رب کائنات جو حکم، رب فرمائے گا اگر چہرہ پھیر دوں اس کے بعد اور تو کچھ نہیں مانگو گے، کہتا ہے رب کائنات اور کچھ نہیں مانگوں گا، صرف اتنا کر دیا جائے میرا چہرہ پھیر دیا جائے۔ رب فرمائے گا اس انسان کا چہرہ دوزخ کی آگ سے پھیر دیا۔ تھوڑے وقت کے بعد میرا رب پھر اس انسان کو عطا فرمانا چاہتا ہے، رب خود اس انسان کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، وہ کہے گا رب کائنات نادم تو ہوں، شرمندہ تو ہوں، حق نہیں بنتا کہ تو اسے کچھ اور مانگو، لیکن تیری رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے، اگر مجھے دوزخ سے نکال کر جنت کی دہلیز پہ ڈال دیا جائے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔
रब फरमाएगा इंसान तो बड़ा हैरत शिकन है, रब जानता है कि हम कैसे हैं। रब फरमाएगा इंसान तो बड़ा हैरत शिकन है, तू वफा फरामोश है, तूने वादा किया पूरा नहीं किया। अगर मैं ये अता कर दूँ इसके बाद और कुछ नहीं मांगोगे, कहेगा रब कायनात इसके बाद और कुछ नहीं मांगूंगा। रब फरमाएगा ये इंसान जिस पे दोज़ख लाजिम है, दोज़ख वाजिब है, दोज़ख की आग वाजिब है, उसे दोज़ख से निकाल कर जन्नत की दहलीज पे डाल दिया जाएगा। फिर खामोशी, कुछ वक्त गुजरेगा, वो इंसान फिर अर्ज़ करेगा रब कायनात, तो जन्नत की दहलीज पे है ना, जन्नत का दरवाज़ा खुला है और जन्नत की दहलीज पे है। जब इंसान किसी दरवाजे से बाहर खड़ा भी हो, अंदर दाखिल भी हो ना सकता हो, अंदर से देख भी रहा हो, फिर इंसान की कैफियत क्या होती है? तो कहेगा रब कायनात इतने लोगों को तूने जन्नत अता फरमा दी, मुझे भी जन्नत दे देगा तो तेरी कुदरत में तो कोई कमी आने वाली नहीं है। लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत सरा, ज़मीन अल्लाह के लिए, आसमान अल्लाह के लिए, ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है वो भी अल्लाह के लिए है, ज़मीन की गहराई में जो कुछ है वो भी अल्लाह के लिए। वो कहेगा रब सारा तेरे हाथ में, बेयादे कल खई, सब कुछ तेरे हाथ में है, मुझे सिर्फ जन्नत के दरवाजे के अंदर कर दे और मैं जन्नत नहीं मांगूंगा। अल्लाह फरमाएगा इंसान तूने फिर अपना वादा तोड़ दिया, लेकिन उसकी रहमत अता भी फरमाना चाहती है। रब फरमाएगा चल फिर वादा कर, इसके बाद और तो कुछ नहीं मांगेगा। वो कहता है रब कायनात तुम पे दोज़ख लाज़िम थी, तूने चेहरा दोज़ख की आग से फेर दिया, फिर तूने दोज़ख से निकाल दिया, जन्नत के दरवाजे पे डाल दिया, अब तू मुझे जन्नत के अंदर कर देगा, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं मांगूंगा, ये भी मेरा हक नहीं बनता, तो अपनी रहमत से मुझे अता फरमा रहा है। रब फरमाएगा इसे जन्नत से अंदर कर दिया जाएगा। जब इंसान जन्नत से अंदर होगा, जन्नत के अंदर आ जाएगा, रब फरमाएगा कुछ और मांगना चाहते हो? तो कहेगा मैं और कुछ नहीं मांगना चाहता। अब मेरे रब की रहमत फरमाएगी कि इंसान जहाँ खड़ा है वहाँ से चलना शुरू कर दे, जहाँ जाकर थक हार कर तू खुद रुक जाएगा, जहाँ से चला था जहाँ रुकेगा ये सारी जन्नत तेरे नाम चलता जाएगा। और हजूर ने इजाज़त में हदीस मुबारक में मेरा रब खुद उसको हिदायत अता फरमाए। वो इंसान चल रहा है तो रब फरमाएगा ये महल भी अपने नाम कर ले, ये बाग भी अपने नाम कर ले, ये कसूर भी अपने नाम कर ले, ये जितनी भी नेमतें हैं ये भी अपने नाम कर ले। कज़ा व कज़ा के अल्फाज हैं, फिर आप खुद फरमाइए बंदे ये भी मांग ले मैं अता कर दूंगा, ये भी मांग ले मैं अता कर दूंगा। इंसान मांगता जाएगा, रब अता करता जाएगा, फिर आखिर एक मुकाम पे जाकर इंसान रुक जाएगा, इंसान रुक जाता है। हम रब से मांगते हैं, रब अता करता है, लेकिन बाद औक़ात इंसान की ज़िंदगी में ऐसा लम्हा भी आता है, इंसान सोचता है अब मैं अपने रब से और क्या मांगूं, क्या रह गया है जो रब ने मुझे अता नहीं किया। वहाँ इटालिया में एक दोस्त मुझे मिले, अल्लाह ने उनमें बड़ी अपनी नवाज़त फरमाई, वो भी मुझे यही कह रहे थे शाह साहब समझ नहीं आती अब रब से मांगे क्या। अल्लाह ने इज्जत भी दी है, अल्लाह ने दौलत भी दी है, अल्लाह ने रिज़्क़ भी दिया है, अल्लाह ने औलाद भी दी है, अरे उससे मांगो तो सही, इतना अता करेगा कि इंसान उसका शुमार नहीं कर सकता। वो बंदा जन्नत में है तो कहेगा रब कायनात मैं थक गया, मैं हार गया। रब फरमाएगा और मांगो, कहेगा मेरी तो तलब ही खत्म हो गई। रब फरमाएगा और मांगो, कहेगा मेरे दामन में अब कोई गुंजाइश नहीं है, मैं और कुछ नहीं मांगना चाहता। रब कायनात इरशाद फरमाएगा ए बंदे तू आजिज़ है, तो नाकिस है, रब कायनात कादिर मुतलक है, तेरी आरज़ुएं जिन्हें तू लामुतना ही समझता है, इंसान समझता है मेरी ख्वाहिशात की कोई इंतहा नहीं है, लेकिन जब मेरा रब अता फरमाता है, रब कायनात की रहमत के सामने इंसान की ख्वाहिशात कोई अहमियत नहीं रखती। रब फरमाएगा तेरी ख्वाहिशात की इंतहा हो चुकी, तेरा दामन तलब भर चुका है, लेकिन मेरी रहमत की इंतहा नहीं हुई। रब इरशाद फरमाएगा, हजूर अपने सहाबा को ये मंजर बयान फरमा रहे हैं, ज़हन में लाएं जो मैंने शुरू में अर्ज किया कि शायद वो इंसान हम में से कोई हो जाए, हम में से कोई ऐसा हो जाए, ये भी बड़ी खुश नसीबी है, ये बड़ी सादत की बात है। हजूर ने इरशाद फरमाया, रब ऐलान करेगा ए बंदे तू गुनहगार था, तू सियाहकार था, तू खताकार था, तू मेरा नाफरमान था, कोई पे दौलत लालम थी, कोई पे दौलत की आग लालम थी, तूने कहा चेहरा फेर दे
जन्नत भी अता कर दी, फिर तू मांगता रहा, मैं अता करता रहा, तू दस्ते सवाल दराज करता रहा, मैं दस्ते अता बढ़ाता रहा, तू झोली फैलाता रहा, मैं तेरा दामन भरता रहा। अब तेरी ख्वाहिशात की इंतहा हो चुकी है। रब्बे कायनात आखिरी जुमला इरशाद फरमाएगा, है मेरे बंदे, अभी तक जितनी नेमतें अता की हैं तेरे मांगने से अता की हैं। मेरी रहमत का ये तकाजा है, जितनी जन्नत तूने मांग कर ली है, इससे 2 गुना जन्नत बगैर मांगे मैं तुझे और अता करूंगा। रब्बे कायनात गफूर रहीम है, करीम है, रहम फरमाने वाला है। एक माँ जिस तरह अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, उस माँ की ममता सफा मरवा पे इंसान साई करता है। पता है आपको क्यों साई करते हैं? अल्लाह ने कुरान में सफा और मरवा को अपनी शायर निशानियाँ करार दिया। वजह क्या है? सफा और मरवा को कौन तोड़ती रही? हजरत हाजरा। हजरत हाजरा सफा मरवा पे क्यों तोड़ी थी? क्या अल्लाह की रज़ा के लिए या किसी इबादत के लिए? नहीं, वो इस्माइल बेटा तड़प रहा है प्यास से, बेटे की प्यास बुझाने के लिए हाजरा दौड़ रही है। तो माँ की ममता हाजरा को मजबूर करती है, कभी सफा पे जाओ, कभी मरवा पे जाओ। माँ की मोहब्बत को रब्बे कायनात ने कुरान में ऐसे महफूज कर लिया। अब कोई हाजी या उम्रा करने वाला जब तक सफा मरवा पे ना दौड़े, मनासिक ही कबूल नहीं होते, मनासिक ही पूरे नहीं होते। तो हजूर ने इरशाद फरमाया, किस तरह माँ की ममता बेमिसाल होती है, इसी तरह रब्बे कायनात की मोहब्बत एक माँ से भी 70 गुना अपने बंदों के साथ होती है। तो अपने बंदों से मोहब्बत करता है, अता फरमाएगा। वक्त खासा हो चुका है। मेरी कमज़ोरी ये है कि वक्त का ख्याल नहीं रहता। वजह यह है कि मुझसे तो हो न सके कह करे दिल पर का बयां। ये अलग बात है कि देता रहूँ इज़हार फूल। इंसान फूल देता रहे 2 घंटे 4 घंटे भी करे, मेरे आका के औसाफ का काम मुकम्मल नहीं हो सकता। और अगर 4 घंटे के बाद भी हम अमल न करें तो फिर हमारी माफ़त का कोई फ़ायदा नहीं होगा। रब अमल की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की सीरत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। इस तरह आपका ने आखिरी नसीहत में फरमाया, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम। और नमाज के हवाले से ज़रूरी नहीं है कि नमाज यहाँ पे पढ़ेंगे तो होगी, साथ के अमामा से जाएंगे तो होगी, और अगर ये शलवार कमीज पहनेंगे फिर नमाज होगी। यार जिस हाल में हैं, जहाँ हैं, अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जाए, वो कबूल फरमाए। इस्लाम में सख्ती नहीं है, इस्लाम में आसानी नहीं है। सिर्फ वो सजदा मांगता है, सिर्फ जबीन न्याज मांगता है, जहाँ वो जबीन झुका दो रब कबूल फरमाने वाला। यहाँ रह रहे हैं अपने घरों से दूर, अल्लाह आपको आसानियाँ दे, अल्लाह आपको सहूलियत अता करे, रिज़्क़ में बरकतें दे। अल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। एहसान कुरान कहता है नेकी का बदला नेकी होती है, और नेकी की जज़ा नेकी होती है। नेक अमल का बदला नेक अमल होता है। अगर ये मुल्क आपको सहूलियत देता है, आप इसके साथ वफ़ा करें, आप वफ़ा फरामोश न बने। कोई ऐसा अमल ना करें, कोई ऐसा अमल ना करें जिससे मेरे नबी की ज़ात पे हर्फ आता हो कि मुसलमान ऐसे होते हैं। या इस्लाम ये तालीम देता है, इस्लाम चोरी की तालीम नहीं देता, इस्लाम बदअक़ली की तालीम नहीं देता, इस्लाम निगाहों की बेहुरमती की तालीम नहीं देता। अपने आप को महफूज रखें, नबी के रास्ते पे चलें, इस मुल्क के वफादार रहें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें। रब दुनिया भी देगा, रब आखिरत भी देगा। ये नगमा फस्ल गुलाला का नहीं पवन, बहार हो के खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे खुद हैं जमात के आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह।